मुझे ये फिल्म जब मुझे ऑफर की गई थी विशाल ने, तो पहले स्टोरी बता दी थी, स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। जैसे ही फिर जय ने सुना कि मैं कर रही हूँ, उसने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। ओके ओके, हाँ, सो विशाल ने मुझे जब ऑफर किया था ये फिल्म, सो मैं काफ़ी एक्साइटेड था स्टोरी के साथ, और साथ ही साथ उन्होंने मुझे एक कहते हैं ना वो चेरी ऑन द केक टाइप का एक ऑफर दिया था। वो था कि इस फिल्म में दयावान का वो गाना है जो हम रीमेक कर रहे हैं, और उसे सुनकर मैंने कहा था कि बॉस मुझे ये फिल्म करनी ही करनी है, बिकॉज उस फिल्म का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। एंड वहाँ पर जैसे विनोद खन्ना एंड माधुरी दीक्षित ने इतना कमाल का परफॉर्मेंस दिया था, so I thought कि let me challenge myself and let me see if I can do the same kind of things जो उन्होंने किया था, and I'm happy that I'm a part of this film. The story of this film is about a lot of power, a lot about power from the core of a woman. ओवरऑल मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि बिल्कुल डार्क कैरेक्टर है। मैं थोड़ा वो मीनिंगफुल वाले करते करते थोड़ा तंग आ गया था, यहाँ पर थोड़ा अच्छा ये ऐसा क्यों है, समाज ने ऐसा किया होगा, वैसा किया होगा, कुछ नहीं है, ये विलन है, पूरी तरह से विलन है। डार्क एंड एंजॉयड योर वर्क, एंजॉयड माय को-स्टार्स। इस फिल्म में जैसे सर ने कहा, मैं एंटोन वर्गीस एक पुलिस ऑफिसर का किरदार निभा रहा हूँ। जो हादसा होता है वो अनफॉर्चुनेटली मेरे जुरिस्डिक्शन में होता है, तो इस केस को सॉल्व करने में लगा है, और सोनिका का जो कैरेक्टर है उसके साथ चोर पुलिस में लगा रहता है। एक पूरी फिल्म अपने शोल्डर्स पर लेना, आई मीन एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं कहूँगी कि इट वॉज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी, तो आई डेंट वॉन्ट टू रन अवे फ्रॉम इट, एंड व्हेन आई वाज ऑफर्ड, आई थिंक विशाल ने बहुत बिलीफ दिखाया, एंड मेरे को एक्टर्स इतने कमाल के हैं। जो कास्ट के बारे में जब मैंने सुना, that was another very big reason for me, because the film is not, it's not one person's film. I can't even say it's my film. Everybody makes a film, from the team, the unit, the music, the production, the director, the DOP. So maybe I took it up as a challenge for me to become far more comfortable with my own sexuality and my sensuality. In my head, it was a personal journey for me, and for me, my professional and my personal journeys sort of work parallelly, and I think it works best. That's my ideology in life. So it was more of a challenge to really get comfortable with myself, and to break any blocks that did exist as an actor. And I hope I have broken. I don't know. I have broken a lot of them, and I'm very comfortable kissing on screen and being sensuous on screen. All I can promise is that it gets bigger and better. The love, the sensuousness, I think that attracts most of us, doesn't it? The vengeance, the revenge, the hate, the music, it's just lovelier and bigger and better. And I'm not trying to beat any sex quotient. I'm trying to be true to my character. I'm trying to be true to Sonika's character. Which is, she's a girl who's in a lot of pain, in a lot of mental and physical pain. So it's her outburst of emotion, of anger, of pain, of agony that comes out in the form of vengeance. I'm most comfortable in my skin today. I'm extremely happy for who I am, what I am, and that to me is sexuality and sensuality, and not showing off skin. Well, जब ये गाना मुझे सुनाया गया था, I loved the song, and till the time we were not shooting, मुझे idea नहीं था कि we're going to be shooting it this way, and जैसे अचानक से regular shooting days हो रहे थे, we were in Goa and we started this song. तो विशाल आके कहते हैं कि we are going to be shooting it this way, और आपका जो सवाल था
कि what was the first thing which came in my mind, वो ये था, पहले वो आगे बढ़ी या मैं? वो पहले था, क्योंकि I was so confused because actually to be really frank I'm not so confident because कभी मैंने ऐसे scenes किए नहीं हैं. मैं रोज करती आती हूँ. नहीं, लेकिन I'm a very कहते हैं ना कि थोड़ा सा अपना पर्सन, या कहते हैं कि ये थोड़ा मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ. आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक, आई एम नॉट दैट कॉन्फिडेंट लाइक डूइंग दीज काइंड ऑफ सीन्स. यार ये भी वही है, एक तरह से अवेयरनेस ही है. व्हाट आई टॉक अबाउट विमेन एम्पावरमेंट एंड बी अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू, वो एक शो है जो मैं प्रेजेंट करता हूँ. यहाँ पर मैं एक्ट कर रहा हूँ एंड इन एनी वे यहाँ पर ये नहीं दिखाया है कि बुराई की जीत होती है और अच्छाई हार जाती है. नथिंग ऑफ द सॉर्ट. जो अंत होना चाहिए. एंड सावधान इंडिया एक अलग है, ये अलग है. इट्स एन एंटरटेनर थ्रिलर सेंशुअस फिल्म, आपके एंटरटेनमेंट के लिए बनी है. बेसिकली इट्स द वे वी आर, जब हम बोल रहे हैं, इट्स अ मोर रिवेंज, मोर वुमेन पावर, एंड इट्स अ रिवेंज स्टोरी ऑफ अ गर्ल, ओके, जिसके लिए वो लड़ रही है, जिसके लिए वो फाइट कर रही है. For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.